Good morning, dear children. Welcome to your EVS class of Standard 2. Today we are going to start a new chapter, Chapter 7 Air and Water. Children, have you noticed leaves fluttering on trees? What is moving them? आपने कभी नोटिस किया है पेड़ों के पत्तों को हिलते हुए? देखा है कभी? कौन हिलाता है इन्हें? कौन मूव कराता है? It is because of air. Air is a mixture of gases surrounding the earth. Air is everywhere. We cannot see it. It can be felt when it is moving. And moving air is called wind. Air gases का मिक्सचर होता है जो अर्थ के सराउंडिंग होता है, अर्थ के चारों तरफ होता है। एयर हर जगह होती है, इसे देखा नहीं जा सकता। हम लोग इसे फील करते हैं जब ये मूव करता है और मूविंग एयर को विंड कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सारे लिविंग थिंग्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या बर्ड्स, उन्हें एयर की आवश्यकता होती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर होता है और जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Uses of air. Let us read first. We need clean and fresh air to breathe. Air is needed for burning. We fill air in tires, balls, and balloons. Divers and mountaineers carry an oxygen cylinder on their back. Animals living in the water take the air present in the water through their gills. Plants use carbon dioxide from the air to prepare their food. We need clean and fresh air to breathe. हमें सांस लेने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। इट मेक्स अस हेल्दी एंड रिलैक्स्ड। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। फॉर बर्निंग एयर इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ देयर इज़ नो एयर वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। You have to blow a candle and then after blowing it you have to cover it with a glass. आप क्या देखेंगे? जो कैंडल आपने ब्लो किया था, जलाया था, वो बुझ जाएगा। एंड चिल्ड्रन, प्लीज़ डू इट विद योर पेरेंट्स, डोंट डू इट अलोन. We fill air in tires, balloons and balls. When we fill air in tires, balloons and balls, it expand. They expand. जब भी हम लोग टायर, बलून या बॉल में एयर फिल करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है. Divers and mountaineers carry an oxygen cylinder on their back. डाइवर्स जब भी सी डाइविंग करते हैं या माउंटेनर्स जब भी माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है.
Animals living in the water take the oxygen present in the water with their gills. Animals जो वाटर में रहते हैं वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने गिल्स से लेते हैं. Plants use carbon dioxide from air to prepare their food. As you can see in the picture, plant को भी एयर की आवश्यकता होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. Now we will read about the properties of air. Air fills space. When we blow air into balloons or a flat tube, we notice that it blows up. This shows that air occupies space. Air has weight. Take a deflated without air and inflated balloon. Now hang these on a stick with a thread. What do you notice? The balloon filled with air weighs more. This shows that air has weight. एक डिफ्लेटेड बलून यानी विदाउट एयर का और एक एयर से फिल किया हुआ बलून लेंगे, उसे एक स्टिक के दो कॉर्नर्स पे थ्रेड से बांध देंगे. अब आप नोटिस कीजिए जो बलून एयर से फिल था उसका वेट ज़्यादा है. दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Air has moisture. Fill ice cold water in a glass. Leave it for some time. We notice that tiny droplets appear on the outer surface of the glass. This proves that air has water. आप आइस कोल्ड वाटर को एक ग्लास में लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि ग्लास के आउटर सरफेस पे यानी बाहरी सतह पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स आ गए हैं. ये ड्रॉपलेट्स प्रूफ करते हैं कि एयर में मॉइस्चर यानी एयर में वाटर भी होता है. नाउ वी विल रीड अबाउट एयर पॉल्यूशन. Air becomes dirty, polluted due to smoke from factories, vehicle burning, etc. The smoke makes the air harmful for us. We should try to keep the air clean as fresh air is good for our health. We must try to plant more plants near our house and the school. Plants make the air pure. Due to smokes coming out from the factories, vehicles आदि से जो स्मोक बाहर आता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, डर्टी करता है और ये एयर इन्हेलेशन के यानी सांस लेने के लायक नहीं रहती है. ये हार्मफुल एयर बन जाती है. हमें अपने एयर को क्लीन रखने के लिए, इसे फ्रेश रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए. वी शुड ट्राई बिकॉज क्लीन एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. वी मस्ट ट्राई टू प्लांट मोर प्लांट्स. हमें अपने सराउंडिंग्स में यानी अपने घर और अपने स्कूल के आसपास प्लांट्स भी प्लांट करने चाहिए यानी पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि प्लांट्स मेक द एयर प्योर. As you can see in these pictures, you will notice that smoke coming out from vehicle or burning of forest, smoke coming out from factories or houses, and volcanic eruption are the main causes of air pollution, but we can reduce them. How can we reduce air pollution?
by planting more trees, using electric vehicles, using environment friendly vehicles, using alternate sources of energy, and using public transport. एयर पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें इस काम में मदद करती हैं, जैसे कि हम प्लांट्स लगाएं, ऐसे व्हीकल्स यूज़ करें जो इलेक्ट्रिक से चार्ज होते हैं और उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग करें, अपने नियर बाई प्लेसेस पे बिना व्हीकल के जाएं, यानी वॉकिंग करते हुए जाएं। अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ करें, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। आप इन दो पिक्चर्स में देख सकते हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर, ट्रीज़ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाई को ऑब्जर्व करते हैं, और ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी ब्रीद आउट करते हैं। उसी तरह से फैक्ट्रीज से निकलने वाले ये धुएं ट्रीज़ को में ऑब्जर्व हो रहे हैं, और ट्रीज़ फ्रेश एयर यानी एक फ़िल्टर का काम करता है। सो वी शुड ट्राई टू प्लांट more and more trees. Thank you, children. Hope you enjoyed and understood the chapter. In the second part of this chapter, we will read about water. Thank you. Stay safe. Stay home.